بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا. آج ہم لوگ جس مجلس میں حاضر ہیں الحمدللہ ماہ محرم کا چاند نظر آ چکا ہے. جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے پوری دنیا کے اندر ایک واویلا سا مچ جاتا ہے کہ 1400 سال پہلے میدان کربلا کے اندر جو خون ریزی ہوئی تھی اور جس کے اندر نواسہ رسول اور آپ کے ساتھ آپ کے رفقا کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، آج پوری دنیا اہل سنت ان ایام کو یاد کرتی ہے. آج میں ایسے ہی اس رفقا امام حسین میں سے جس شخصیت کے بارے میں آج میں آپ لوگوں کو روبرو کروا رہا ہوں وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے بلکہ انہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. حضرت عباس ایک ایسی شخصیت جنہیں پوری دنیا علم بردار کے نام سے یاد کرتی ہے. یاد رکھیں یہ وہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب حضرت فاطمہ الزہرا سے نکاح فرمایا اور نکاح کے بعد آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا سے 3 شہزادے اور 3 شہزادیاں میسر ہوئی، اور جب حضرت فاطمہ الزہرا نے اس دنیا سے رخصت لی اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دیگر ازواج سے، دیگر عورتوں سے نکاح فرمایا، اور نکاح فرمانے کے بعد جو اولادیں حضرت علی کو حاصل ہوئی ان میں حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یاد رکھیں یہ ایسی شخصیت جنہوں نے مدینہ المنورہ سے امام حسین کے ساتھ میں اپنا سفر جاری کیا تھا، اور یہ سفر اختتام ہوا میدان کربلا کے اندر. میدان کربلا ایک ایسا میدان کہ جسے آج بھی میدان کربلا کہا جاتا ہے، یعنی یہ میدان ایسا میدان ہے کہ جس کے بارے میں شہزادگان فرماتے ہیں کہ بابا جان یہاں جو جاتا ہے وہ کبھی زندہ واپس نہیں آتا. بابا جان یہ کیسے مقام پر ہم حاضر ہو گئے ہیں، بابا جان یہ ہم کس مقام پر آ گئے ہیں. یاد رکھیں آج پوری دنیا امام حسین کو یاد کر رہی ہے، مگر یاد رکھیں اسی یاد کے بعد میں پوری دنیا آج یزید پر اور یزیدی فوج پر ملامت کر رہی ہے. یہ کون سا معاملہ تھا؟ ہاں یہ وہی تو معاملہ تھا. واقعات کی دنیا بڑی طویل ہے، مگر میں آج آپ کے سامنے جس چیز کو لے کر آیا ہوں یاد رکھیں جو پوری دنیا اسلام کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے سکتی ہے. آج ہم ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں جو حضرت امام حسین کے بھائی ہیں، حضرت امام حسن کے بھائی ہیں. یہ قافلہ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ پہنچا. مکہ المکرمہ کے بعد یہ راستہ طے کرتا ہوا یہ قافلہ میدان کربلا پہنچا. ہاں یہ میدان کربلا وہی ہے جس کے نزدیک کوفہ موجود ہے. امام حسین کو بار بار جو خطوط کوفہ سے لکھے جا رہے تھے یہ وہی جگہ تھی جہاں پر بلایا تو گیا تھا، لیکن جو حالت پوری دنیا کے سامنے رکھی گئی وہ تھی خون حسین، اور وہ تھی خون رفقا حسین. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب میدان کربلا میں پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ ڈالنے کے بعد تاریخ میں یہ چیزیں بارہا ہمیں ملتی ہے، جب کوئی فوج کسی چیز کی طرف جاتی ہے نا تو کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو اس پوری فوج کا قائد ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں علم ہوتا ہے، جو دور سے پہچان میں آتا ہے یہ آنے والے کون ہے. حضرت امام حسین کا یہ لشکر جب مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف جا رہا تھا تو اس وقت میں جو علم امام
हुसैन ने जिसके हाथ में दिया था वो हाथ हजरत अब्बास के थे। तुम्हें मालूम है हजरत अब्बास कौन है? इतनी आसान शख्सियत नहीं है। आज पूरी दुनिया में आपका नाम का अलम उठाकर नचाया जा रहा है, मगर याद रखें, अगर कोई इंसान हजरत अब्बास की जिंदगी को देखे तो वो समझ जाएगा कि अल्लाह ने ऐसी शख्सियतें, ऐसी नुफूसे कुदसिया इस जमीन पर नाजिल फरमाई है कि जिनके दम कदम से आज भी तारीख इस्लाम सुनहरे अल्फाजों में किताबों में दर्ज है। अल्लाह ने ऐसी ही शख्सियतों ने हजरत अब्बास को रखा था। हजरत अब्बास के हाथ में अलम बरदार है, आप अलम बरदार है, हजरत अब्बास के हाथ में अलम है। आप आगे बढ़ते गए, एक मकाम पर आपके जानवर रुक गए। हजरत इमाम हुसैन ने पूछा ये कौन सा मकाम है, क्या कहा जाता है इस मकाम को? तो लोगों ने कहा इस मकाम को करबला कहते हैं। कहा ये जो बाजू से दरिया बह रहा है इसका नाम क्या है? तो कहा इसका नाम नहरे फुरात है। तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये वही जगह है जिसका वादा मेरे नबी ने मुझे किया था, ये वही मकाम है जिसके बारे में मुझे बताया गया था। ये खैमे लगे, खैमे लगने के बाद रिवायात काफी लंबी है, खुतूत पर खुतूत आ रहे थे। इमाम हुसैन मैदान करबला में, रुफ़क़ाए हुसैन मैदान करबला में, अहबाब हुसैन मैदान करबला में, सबके खैमे लगे हुए हैं। आज लोग, आज पूरी दुनिया कहती है कि इस्लाम तो तलवार के बलबूते पर फैला है। मैं कहना चाहता हूं अगर तलवार के बलबूते पर फैला है तो जरा मुझे बताओ कि वो कौन सी चीज थी कि मैदान करबला के अंदर मेरे हुसैन अपनी औलादों के साथ भी जा रहे हैं। कौन ऐसा बाप होगा जो 6 महीने का बच्चा लेकर मैदान के अंदर जंग करने के लिए आया हो? ऐसा नहीं है। याद रखें, इस्लाम जो फैला है ये तलवारों के बलबूते पर नहीं बल्कि मोहब्बतों के बलबूते पर फैला है। ये मोहब्बतें थी जो सीना ब सीना फैलती चली गई और आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम सब पर गालिब है। वजह क्या है? उन्होंने पढ़ा है इस्लाम के बारे में, उन्होंने समझा है इस्लाम के बारे में और ये फैसला किया है कि इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं है। पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, अय्याम गुजरते चले गए। जब अय्याम गुजरते चले गए यजीदी फौज की तरफ से इसरार बढ़ने लगा कि ए हुसैन आप यजीद की बैअत कर ले। आज लोगों ने इसको एक सियासी मंसूबे का नाम दिया है। ये कहा जाता है कि अगर इमाम हुसैन बैअत कर लेते तो इतनी ज्यादा मसले की बात न थी, सारे मसाइल हल हो जाते। ये तो तख्त व ताज की लड़ाई थी। याद रखे, ये तख्त व ताज की लड़ाई नहीं थी बल्कि ये ऐसी लड़ाई थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कि यजीद जिसके बारे में रिवायात आती है कि जो शराबी था, जालिम था, याद रखें जिसने लोगों के ऊपर जुल्म किया हो, इस्लाम का मदार उसके हाथ में नहीं दिया जाएगा। क्या करबला के बाद मस्जिद नबवी के अंदर बांधे जाने वाले घोड़ों से हमने सबक ना लिया कि आखिर जिस मस्जिद को मेरे नबी की मस्जिद कहा जाता है उसमें जब इन लोगों ने घोड़े बांधे उसको अस्तबल बनाया? क्या वो तारीख दुनिया भूल चुकी है? याद रखे, इमाम हुसैन अगर यजीद की बैअत कर लेते ना तो फिर मसाइल इतने बिगड़ जाते कि शायद हम और तुम भी आज शराबी होते, आज हम और तुम भी जीना करने वाले होते। मुसलमान कभी हलाल और हराम में तमीज ना करता। ये इमाम हुसैन के शहादत का सदका है कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान हलाल और हराम में तमीज कर रहा है, हक व बातिल के अंदर तमीज कर रहा है। ये क्या चीज है? कहा ये वो चीज है कि इमाम हुसैन ने बैअत ना की। वजह क्या? कहा अगर एक फाजिर के हाथ में बैअत कर ली जाएगी तब तो मसाइल बिगड़ते चले जाएंगे, मगर हाल ये है कि इसरार बढ़ने लगा। 7वीं तारीख को यजीदी फौज से एक कासिद आया, उसने कहा इमाम हुसैन तुम यजीद की बैअत कर लो, अगर तुम यजीद की बैअत कर लेते हो तो तुम्हें अमन दिया जाएगा, और अगर तुम यजीद की बैअत नहीं करते
तो तुम्हें हमारे मुकाबले में जंग करनी पड़ेगी। इमाम हुसैन ने मना फरमाया। अब मना फरमाने के बाद हम और तुम क्या कर सकते हैं? अरे जाहिर सी बात है, दुनिया का कितना भी जालिम इंसान हो, अगर वो प्यासे को देख ले तो पानी जरूर पिलाएगा। दुनिया का कितना ही जालिम आदमी क्यों ना हो, अगर किसी भूखे को देखेगा तो खाना जरूर खिला देगा। ये यजीदी फौज है। तारीख करबला उठाकर देखो, हमारे असलाफ की तारीख को देखो, वो नबी के खानदान की तारीख को देखो, हजरत हैदर कर्रार के शहजादों की तारीख को देखो। 7 तारीख को नहरे फुरात का पानी बंद कर दिया गया। जब ये नहरे फुरात का पानी बंद किया गया, नहरे फुरात के ऊपर यजीदी लश्कर छाया हुआ है। वो छाए हुए लश्कर पर अब यजीदी फौज का पहरा है, उस नहरे फुरात पर पहरा है। एक कतरा हुसैनी खैमे में नहीं आ सकता। 3 दिन 7वां दिन हो चुका है, पानी की कोई गुंजाइश नहीं, खाने की कोई गुंजाइश नहीं। 8वां दिन निकला, खाने की कोई गुंजाइश नहीं, पानी की कोई गुंजाइश नहीं। 9वां दिन आया, पानी की कोई गुंजाइश नहीं, खाने की कोई गुंजाइश नहीं। याद रखें, ये 9वीं तारीख थी कि 9वीं तारीख के शाम में एक कासिद यजीदी फौज से आता है, कहता है ए इमाम हुसैन, आप तुम्हें बैअत करनी पड़ेगी, वरना तो तुम्हें हमसे जंग करनी पड़ेगी। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मैं यहां जंग के इरादे से तो ना आया था। अगर मैं आता तो अपनी बीवियों को साथ में ना लाता। अगर मैं जंग के इरादे से आता तो मैं अपने बच्चों को साथ में ना लाता। मेरा 18 साल का अली अकबर मेरे साथ ना आता। मेरा 6 महीने का अली असगर, जो अभी मां का दूध पीता है, झूले में झुलाया जाता हो, कि मैं उसको अपने साथ ना लाता। मदीने की इतनी खूबसूरत बहारों को छोड़कर मैदाने करबला की रेगिस्तान में मैं अपने बच्चों को ना लाता। मेरे खानदान के लोग मौजूद है, मेरी बेटी सकीना मेरे साथ में है। मैं जंग करने ना ही आया था, मैंने तो कूफा की तरफ से आने वाले खुतूत का जवाब देने के तौर पर आया था। जब उन्होंने इसरार किया था कि वो हमसे बैअत कर लेंगे तो मैं आया था। अब उनका दिल बदल चुका है, अब इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम्हें हमसे जंग करनी पड़ेगी। इमाम हुसैन ने कहा, ठीक है, जंग करनी है, कोई बात नहीं, लेकिन जंग अभी नहीं की जाएगी। जंग के लिए हमें एक रात अता की जाए। याद रखें मुसलमानों, एक रात अता की गई, वो 10वीं सुबह। जब 10वीं सुबह आशुरे का दिन, ये वही दिन है जिसके बारे में फरमाया गया कि क़यामत जब आएगी तो यौमे आशुरा होगा। ये वही दिन था जिस दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे पर लगी थी। ये वही आशुरे का दिन था जहां हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला गया था। ये वही आशुरे का दिन था जिस दिन जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल किया गया था। और यही तारीख के बारे में फरमाया जाता है, यही 10 तारीख होगी मुहर्रम की, जिसको यौम आशुरा कहा जाता है, जिस दिन क़यामत नाजिल होगी। ये क़यामत तो जब नाजिल होनी है तब होगी, लेकिन मैदान करबला के अंदर 10वीं मुहर्रम का सुबह नमूदार हो गई। सूरज जो है अंधेरे को फाड़ता हुआ पूरी जमीन पर फैलने लग गया। इमाम हुसैन का लश्कर तैयार है, यजीदी फौज तैयार है। ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे कहता हूं, आज तुम सुनने के लिए आए हो, मैं तुम्हें सुनाने के लिए आया हूं। कभी दुनिया में ये तारीख देखी है? आज भी जंगें होती है। हमने वर्ल्ड वॉर 1 भी देखा है, वर्ल्ड वॉर 2 भी देखा है, और हो सकता है कि आने वाले जमाने में वर्ल्ड वॉर 3 भी देखने में आ जाए। लेकिन तुम्हें ऐसा वॉर कभी देखने में नहीं मिलेगा जहां पर एक यजीदी बैटल जो 22,000 की तादाद में था, 22,000 यजीदी अपनी तलवारों को मियानों से बाहर निकाले हुए इमाम हुसैन के खून के प्यासे थे। और इधर इमाम हुसैन के बैटल को देखो, इमाम हुसैन के खैमे को देखो, इमाम हुसैन के लश्कर को देखो, कितने हैं गिनती के, जिन्हें हम उंगलियों पर गिन सकते हैं। सिर्फ 72 जाने सारान ने इमाम हुसैन है, सिर्फ 72 लोग 22,000 के मुकाबले में
अक्ल तंग रह जाती है कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। अरे याद रखे, समझ में आता है, अगर 22,000 के मुकाबिल में 1,000 10,000 लड़ रहे हो, मसला समझ में आता है, लेकिन 22,000 के मुकाबिल में सिर्फ 72 हो, मसला समझ में नहीं आता। 10वीं सुबह हो चुकी है। जब 10वीं सुबह हो चुकी है, यके बाद दिगरे जान इसारा ने इमाम हुसैन मैदान करबला के अंदर जा रहे हैं। याद रखे जाने वालों में हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बड़े शहजादे हजरत इमाम हुसैन का शहजादा हजरत इमाम कासिम भी है। हजरत इमाम कासिम ने जब हजरत इमाम हुसैन से, अपने भाई से, अपने चचा के बेटे से जब इजाजत ली होगी मैदान करबला में जाने की, तो सोचो उस भाई के ऊपर क्या गुजरी होगी। ये हजरत इमाम कासिम मैदान करबला में जब जान इसारा ने मुस्तफा, जब जान इसारा ने इमाम हुसैन के बाद दिगरे शहीद होते चले जा रहे थे, उस वक्त में क्या देखने में आता है। मैंने बात शुरू की थी हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु पे। जानते हो हजरत अब्बास अलमबरदार है, खैमों की हिफाजत फरमा रहे हैं, खैमों की हिफाजत फरमा रहे हैं। एक खैमे से रोने की आवाज आ रही है। पूछा गया कौन रो रहा है, कहा हजरत इमाम हुसैन का 6 महीने का शहजादा नन्ना अली असगर रो रहा है। कहा क्यों रो रहा है, कहा भूख की प्यास की वजह से रो रहा है। कहा उसकी भूख और प्यास को क्यों नहीं मिटाया जाता, कहा इसलिए क्योंकि यहाँ पर तो पानी बंद है। अरे अगर माँ कुछ ना खाएगी, माँ अगर कुछ ना पिएगी, तो वो अपने बच्चे को रिस्क कहाँ से दे सकती है। बच्चे का रोना हजरत अब्बास से सहा नहीं गया। छोटी सकीना हजरत इमाम हुसैन की शहजादी दौड़ती हुई खैमे से बाहर आई। आने के बाद अपने चचा अब्बास से लिपट गई और कहने लगी, चचा जान बड़े जुल्म का मामला है, बड़ी शिद्दत का मामला है, हम तो बच्चे हैं, अरे इनकी जंग हमारे बड़ों से है, हमने क्या किया है। जरा देखो ना चचा जान कि भाई शहजादा झूले के अंदर किस तरीके से रो रहा है। आज हम और आप इमाम हुसैन पर, अहले बैत अतहार पर तमाशे कर रहे हैं, लेकिन मैदान करबला में क्या हुआ था आज हम उससे गाफिल है कि आज पूरी दुनिया को यह बताया जाता है कि हाँ मुहर्रम लग गए ढोल बजाए जाएं, मुहर्रम लग गए ताशे बजाए जाएं। मगर मैं उन मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, क्या तुमने मैदान करबला को कभी पढ़ा है, तारीख करबला को कभी पढ़ा है? क्या तुमने कभी समझने की कोशिश की है कि आज जिसके नाम का अलम तुम बाजारों में लेकर घूम रहे हो, जिनके नाम की सवारियां तुम बाजारों में लेकर घूम रहे हो, उनके साथ मैदान करबला में क्या हुआ है? हम इसके बारे में तसव्वुर नहीं करते, बल्कि हम तो सिर्फ तमाशों के पीछे लगे हुए हैं। हजरत अब्बास के पास जब वो सकीना लिपट गई, चचा से भतीजी का रोना देखा नहीं गया। आपने एक मशकीजा उठाया। मशकीजा पानी का एक सोर्स होता है जिसके अंदर पानी जमा किया जाता है। आज के दौर में तो मटके मौजूद है, आज के दौर में हम सब मुसलमानों के लिए तो ऐसी ऐसी चीजें मयस्सर है जिसका तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते कि अल्लाह ने कितनी आसानियां हमारे लिए फरमाई है। मशकीजा एक चमड़े का बना हुआ एक ऐसा आला होता था जिसके अंदर पानी को जमा किया जाता था। हजरत अब्बास ने मशकीजे को उठाया। जब आपने मशकीजे को उठाया, उठाने के बाद अपने कंधे पर डाला, एक हाथ में तलवार उठाई, घोड़े पर बैठे, घोड़े पर बैठे अपने खैमों से बाहर निकलने लगे। तो इमाम हुसैन ने जब देखा तो कहा, ऐ भाई अब्बास कहाँ जा रहे हो? हजरत अब्बास ने कहा, ऐ भाईजान, ऐ इमाम हुसैन, ऐ नवासे रसूल, ऐ शहजादे बतूल, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। ये अहले बैते अतहार के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे, ये छोटे छोटे बच्चे हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के पोता पोती, हजरत फातिमा ज़हरा के पोता पोती, अरे जिनके दरवाजे से सखावत बटती हो,
आज वो पानी के लिए तरस रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन ने पूछा, भाई जान कहाँ जा रहे हो, आखिर क्या चाहते हो? कहा, भाई जान बच्चों के लिए पानी लाने के लिए जा रहा हूँ। अरे हम पानी ना पिए चलेगा, क्योंकि हमारे लिए तो हौज़े कौसर पर हमारे नाना जान जामे कौसर लेकर खड़े हैं, लेकिन मुझसे इन बच्चों की प्यास नहीं देखी जाती। हजरत अब्बास ने इजाजत तलब की, इमाम हुसैन ने इजाजत अता फरमाई। इजाजत जब अता फरमाई तो हजरत इमाम हुसैन की आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत अब्बास ने पूछा, भाई जान आंसू का सबब क्या है? कहा, ऐ अब्बास मैंने तुम्हें अलम बरदार दिया है, मेरे खैमों का अलम तुम्हारे हाथ में है, तुम मेरे इस खैमे की, मेरे इस पूरे बैटल की रीढ़ की हड्डी हो। आपने फरमाया, अब्बास जा तो रहे हो, अपनी हिफाजत करना। हजरत अब्बास ने घोड़े को एड़ लगाई, जैसे ही एड़ लगाई घोड़ा सीधा मैदान करबला में न जाता हुआ नहरे फुरात की तरफ आपने घोड़े को दौड़ाया। जब घोड़ा दौड़ रहा था तो देखने वालों ने, यजीदी फौज ने जब देखा कि ये क्या हो रहा है, कहा ये कौन है जो आ रहा है? तो लोगों ने कहा, पहचानने वालों ने पहचाना, कहा ये कोई और नहीं है, हाँ ये वही तो है जिसके बाबा जान हजरत अली ने खैबर को फतह कर दिया था, ये वही तो है जिसके बाबा जान ने पूरी दुनिया में मारिफत के दरवाजे खोल दिए हैं, ये अली का शहजादा है, अब्बास इब्ने अली है, हुसैनी खैमे का अलम बरदार है। अब पूरे यजीदी फौज के अंदर पूरी तरीके से तहलका मच गया। अब यजीदी फौज कहने लगी, ये जा किधर रहे हैं? कहा, नहरे फुरात की तरफ। कहा, इन्हें घेरो, इन्हें नहरे फुरात से पानी न लेने देना। अगर इन्होंने पानी ले लिया और खैमे हुसैन में अगर पानी पहुंच गया तो वो यजीदी कहते हैं, अल्लाह की कसम सुबह कियामत तक हमारी औलादें यतीम की जिंदगियां जिएंगी, हमारी औरतें बेवाओं की जिंदगी जिएगी। अगर पानी लबे हुसैन तक पहुंच गया तो फिर हमें दुनिया में बचाने वाला कोई नहीं है। कहा, क्या किया जाए? कहा, अब्बास को घेरो। घेरा गया। जब घेरा गया चारों तरफ से यजीदी फौज को जब आपने देखा, आपने मियां से तलवार को बाहर निकाला। अल्लाह, लड़ते हुए शेर खुदा को तो सारी तारीख पूरी दुनिया जानती है। आज शहजादे अली को भी देखो क्या लड़ रहा है, क्या अंदाज है लड़ने का। आपने तलवार उठाई, उठाने के बाद जब आप दुश्मनों पर चलाते, उन यजीदियों पर चलाते जो बैअत के लिए तड़प रहे थे, तरस रहे थे, वो क्या जानते थे कि ये हुसैनी है, ये किसी तख्तो ताज के मुहताज नहीं है। दुनिया में तख्तो ताज इन्हीं के लिए तो है। हाँ, दुनिया में अगर तख्तो ताज कियामत तक अगर बटेगा तो वही यही शहजादगान के दरबार से बटेगा, जो जिन लोगों को इन्होंने दिया है, फिर उनसे कोई नहीं छीन सकता। हजरत अब्बास लड़ने लगे। जब आप लड़ रहे थे, लड़ने का अंदाज ये था कि आप जिधर जिधर तलवारें चलाते, तारीख की किताबें उठाओ, तारीख की किताबें पढ़ो, तारीख का मुताला करो, तुम्हें समझ में आएगा। हजरत अब्बास जब तलवार को उठाते, अगर दाहिनी तरफ नजर करते तो मर्दों को ऐसे काटते जाते जैसे आज औरतें गाजर मूली को काट देती है, आज जैसे औरतें प्यास को काट देती है, इस तरीके से हजरत अब्बास, अल्लाह, 3 दिन का प्यासा शेर, 3 दिन का भूखा शेर, जिसके हल्क में, जिसके मुंह में एक बूंद पानी ना गया हो, आज वो इतनी दिलेरी से लड़ रहा है। आखिर वजह क्या है? याद रखो, वजह कुछ और नहीं, वजह सिर्फ इश्क खुदा और इश्क रसूल खुदा है, जिसने इन्हें मैदान करबला में जिंदा रखा है। लड़ते जा रहे हैं। जब यजीदी फौज ने देखा कि इनको संभालना तो मुश्किल है, अब तहलका मच गया। जो लोग इनसे लड़ने के लिए आए थे, अब वो बचने
लगे, बचकर भागने लगे। आप किसी तरह नहरे फुरात पर पहुंचे। नहरे फुरात पर जब आप पहुंचे, पहुंचने के बाद अपना मशकीजा कंधे से उतारा। मशकीजा कंधे से उतारने के बाद मशकीजे में नहरे फुरात का पानी को भर लिया। जब पानी को भरा, भरने के बाद मशकीजे को टांग लिया। टांगने के बाद आपने चुल्लू में पानी उठाया कि मैं पी लूं। लेकिन हजरत अब्बास, रिवायात कहती है, हजरत अब्बास ने जब पीने के लिए पानी उठाया है ना, हाथ कांपने लग गए और वो बेटी सकीना की प्यास याद आ गई। हजरत अली असगर की वो नन्ही सी चीखें जो झूले से निकल रही थी, वो याद आ गई। आपने सोचा, जब मेरे भतीजे भतीजियों ने पानी नहीं पिया, अब्बास कैसे पानी पी सकता है। आपने चुल्लू को छोड़ दिया। कहा, जब तक बच्चे पानी ना पिएंगे, अब्बास अपने मुंह को पानी से नहीं लगाएगा। आपने ये इरादा फरमाया, घोड़े को इशारा किया कि वो पानी पी ले। अरे याद रखो, ये वो घराना है, इंसान तो इंसान, जानवर भी वफादारी निभाते हैं। उस घोड़े ने भी पानी को मुंह लगाने से मना कर दिया। हजरत अब्बास ने कहा, क्या तू भी वफादार हुसैन है? घोड़े ने सर को हिलाया। आप मशकीजा लेकर अपने घोड़े पर बैठे। बैठने के बाद वापिस खैमे हुसैन की तरफ जाने लगे तो अचानक यजीदी फौज में आवाज बुलंद हुई, ऐ कमबख्तो, वो अब्बास इब्ने अली जा रहा है। अल्लाह की कसम, अगर मशकीजे का पानी खैमे हुसैन में पहुंच गया तो कसम खुदा की, दुनिया में कियामत तक कोई यजीदी बाकी नहीं रहेगा। हमारी नस्लें खराब हो जाएगी, नस्लें बर्बाद हो जाएगी। कहा, क्या किया जाए? कहा, इन पर चारों तरफ से वार करो। हजरत अब्बास को चारों तरफ से घेरा गया। जब आपको घेरा गया, घेरने के बाद हजरत अब्बास तलवार चलाते जा रहे हैं, तलवार चलाते जा रहे हैं। मगर याद रखें, जंग का एक उसूल होता है कि जहां पीठ के पीछे से वार नहीं किया जाता। ये यजीदी इतने निकम्मे थे, जब उन्होंने देखा कि हजरत अब्बास, अली के शेर को हम काबू में नहीं ला सकते, एक पीछे से जर्रारा नामी शख्स पीछे से आया, जिस हाथ में हजरत अब्बास के तलवार थी और दूसरे कंधे पर मशकीसा टंगा हुआ था। उस कमबख्त ने, उस अजरक ने ऐसी तलवार चलाई कि आपका बाजुए मुबारक जमीन पर गिर गया। मशकीजा जमीन पर गिरने वाला था। हजरत अब्बास ने मशकीजे को पकड़कर दाहिने कंधे पर टांगा। जिस कंधे पर अब मशकीजा है, उसी हाथ में तलवार है। लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं। एक हाथ कट के नीचे गिर गया। ऐ मुसलमानों, में तुम्हें बताना चाहता हूं, आज अगर हमारे बच्चों को या हमको किसी को हल्का सा जख्म हो जाए तो इंसान डॉक्टर के पास भागता है, मगर इन्हें पता था कि हम ऐसे के पास जाएंगे जिसे पूरी दुनिया शाफी महशर कहती है। हाँ, वही तो शाफी है, वही शिफा देने वाले हैं। और किसकी अता से? रब अता के, रब अपने नबी के सदके में शिफा देने वाला है। हजरत अब्बास ने जब मशकीजा टांगा और तलवारें चलने लगी तो नौफिल ने पीछे से देखा। कहा, ये मशकीजा तो नहीं छोड़ेंगे। उस कमबख्त ने एक बार ऐसा किया कि जिस हाथ पर मशकीजा टंगा हुआ था, जिस कंधे पर मशकीजा टंगा हुआ था, जो तलवारें चल रही थी अभी तक, उसी पर वार किया और उसी वक्त हजरत अब्बास का दूसरा हाथ भी कटकर जमीन पर गिर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जज्बे हुसैन तो देखो, जज्बे इस्लाम तो देखो। हजरत अब्बास ने उस मशकीजे को अपने दांतों में पकड़ लिया। जब दांतों में पकड़ा, तीर की बारिश होने लगी तो एक तीर यजीदी फौज से निकलकर उस मशकीजे को फाड़ता हुआ हजरत अब्बास के सीने में पेवस्त हो गया। जब आपके सीने में पेवस्त हो गया तो वो सारा पानी जो मशकीजे में जमा था, वो सारा पानी जमीन पर गिर गया। जब आप
घोड़े से नीचे गिरे तो इतने जख्म आपके बदन पर थे कि आपने आवाज लगाई कि ऐ मेरे भाई हुसैन मेरी इमदाद फरमाए। जब आपकी ये आवाज खैमे हुसैन इमाम हुसैन तक पहुंची, हजरत इमाम हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई, फौरन अपने भाई के पास में पहुंचे। पहुंचने के बाद अभी सांसें चल रही थी, हजरत अब्बास ने कहा कि ऐ भाईजान, सकीना से कह देना कि तेरा चचा तेरा वादा पूरा न कर पाया, मैं तेरे भाई छोटे अली असगर के लिए पानी न ला पाया, कि कह देना कि तेरे चचा ने पानी के लिए बड़ी कोशिशें की, मगर बेटा तेरा चचा तेरे लिए, तेरे भाई के लिए और दूसरों के लिए पानी न ला सका। आपने आखिरी सांस ली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। याद रखे, हर पैदा होने वाली चीज अल्लाह की तरफ रुजू करेगी। अरे मरना तो सबको है, लेकिन जो मौत मैदानी करबला में आई थी वो आज तक याद रखी जाती है। मगर अफसोस ये है कि आज उसी हजरत अब्बास के नाम पर हमने अलम बनाने शुरू कर दिए और उनको नचाना शुरू कर दिया। आज मुसलमानों, हमें ये तक पता नहीं है कि इस्लाम की तालीमात हमें क्या सिखाती है, ये इस्लाम की तारीखें हमें क्या बताती है, इन तारीख से, इन वाकियात से हमें क्या सीखने मिलता है। हमने तो इसे एक ऐसी चीज बनाकर रख दी मानो खेलो तमाशा हो, ढोल बज रहे हैं, नगारे बज रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं, ताशे बज रहे हैं। याद रखें, आप मुसलमानों के अंदर उन चीजों को दाखिल होते हुए हमने आंखों से देखा कि हजरत अब्बास के नाम के ताजिए, हजरत अब्बास के नाम की सवारियां बनाकर बाजारों में घुमाई जा रही है। ऐ मुसलमानों, जरा गौर तो करो, जिन्होंने मैदान करबला में अपनी जानें दी हैं, क्या उनकी जानें इसलिए थी कि हम ढोल ताशों के साथ उन्हें बाजारों की जीनत बना दे? ना ना, याद रखो, ये वो नुफूसे कुदसिया है। अल्लाह की कसम, अगर हम इनके सदक़े में, इनके अय्याम में दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला उन दुआओं को कभी रद्द नहीं करेगा। ये इस्लाम की तालीम है, ये इस्लाम की तारीख है। याद रखें, दुनिया चाहे किसी सिमत भी चली जाए, मगर हमारा ईमान मुस्तहकम है, मुस्तहकम है। हम कल भी उसी कलिमे पर कायम थे, आज भी उसी कलिमे पर कायम है और इंशाअल्लाह कल भी उसी कलिमे पर कायम रहेंगे। जहां पर इस्लाम ने हमें अमन का दर्स दिया है, तमाशे का दर्स नहीं दिया। अमन क्या है, पीस क्या है, आओ जरा देखो तो सही मैदान करबला के अंदर। अरे इससे बड़ा पीस और इससे बड़ा अमन तुम्हें क्या नजर आएगा कि 22,000 के लश्कर जर्रार के सामने हजरत इमाम हुसैन ने अपने सबसे बड़े बेटे हजरत अली अकबर के गोश्त की हड्डियों को पुतली में जमा करके उठाकर खैमे के अंदर लाया हो। इससे बड़ा अमन क्या हो सकता है? याद रखो, इस्लाम की तालीमात कल भी नहीं बदली थी, इस्लाम की तालीमात आज भी नहीं बदली और इस्लाम की तालीमात कल भी नहीं बदलेगी। मगर फर्क ये है कि आज हमने अलाव बनाकर, आग जलाकर उसके अंदर नाचना शुरू कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम शैतान के रास्ते पर चलने लग गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने दामने इमाम हुसैन छोड़ दिया, कहीं हमने दामने हजरत अब्बास छोड़ दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उन लोगों की तारीख को अपनी नजरों से दूर कर लिया जिन्होंने हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाया था। आज हम जिस तारीख को लेकर पूरी दुनिया में जिसका पैगाम देते हैं, वो तारीख आज भी चीख कर यही कहती है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर आज भी देखा जाए तो तुम्हें गली गली में हुसैन, गुलामे हुसैन नजर आएंगे, लेकिन मैदान करबला के बाद फिर कोई यजीद दुनिया में नजर नहीं आएगा। वजह इसकी क्या है? जुल्म का खात्मा होता है और अल्लाह हक को बुलंदी अता फरमाता है। इसीलिए तो फरमाया गया, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पनह अस्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्ते यजीद
حقہ کے بنا لا الہ است حسین. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمارے اس چھوٹے سے مختصر سے بیان کو بیان کے صدقے میں ہماری زندگیوں میں انقلاب لائے. اللہ ہمیں نمازی بنا دے. اللہ ہمیں ہماری زندگیوں کو آسان فرمائے. وما علینا الا البلاغ. واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.